الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو عنوان لے کر آپ کے درمیان یا حکم لے کر آپ کے درمیان آئی ہوں وہ ہے قرآنی حکم جھوٹ کے تعلق سے۔ جھوٹ کے تعلق سے سورہ زمر آیت نمبر 3 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، یعنی بے شک اللہ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور بڑا ہی ناشکرا ہے۔ سامعین کرام، جھوٹ ایک گناہ نہیں بلکہ ایمان کا قاتل، ضمیر کا دشمن اور معاشرے کی جڑ کاٹنے والا زہر ہے۔ آج ہم ایک ایسے گناہ پر بات کر رہے ہیں جو زبان سے نکلتا ہے مگر پورے ایمان کو زخمی کر دیتا ہے، اور وہ ہے جھوٹ۔ جھوٹ صرف زبان کی لفظش نہیں ہے بلکہ یہ دل کی بیماری ہے، کردار کی کمزوری ہے اور ایمان کے لیے یہ خاموش خطرہ ہے۔ جھوٹ ایک ایسا زہر ہے جو میٹھے الفاظ میں دیا جاتا ہے مگر اثر میں انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ سامعین اکرام، انسان کے سارے اخلاق ذمیمہ میں سب سے زیادہ بری اور مذمم عادت جھوٹ کی ہے۔ یہ جھوٹ خواہ زبان سے بولا جائے یا عمل سے ظاہر کیا جائے، کیونکہ ہمارے تمام اعمال کی بنیاد اس پر ہے کہ وہ واقعے کے مطابق ہوں، اور جھوٹ ٹھیک اس کی ضد ہے۔ اسی لیے یہ برائی ہر قسم کے قولی اور عملی برائیوں کی جڑ ہے۔ انسان کے دل کے اندر کی بات سوائے خدا کے کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ کوئی دوسرا کسی شخص کے متعلق اگر کچھ بیان کر سکتا ہے یا باور کر سکتا ہے تو اس کی ایک ہی صورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ شخص خود اپنی زبان سے یا عمل سے ظاہر کرے۔ سامعین اکرام، اگر وہ اپنی اندرونی صحیح اور جو ہے واقعے کے مطابق بات جان بوجھ کر نہیں ظاہر کرتا بلکہ اس کے خلاف ظاہر کر رہا ہو تو وہ ساری دنیا کو فریب دے رہا ہے۔ ایسے شخص میں دنیا کی جو برائیاں بھی نہ ہوں گی وہ کم ہے، کیونکہ اس نے تو اس آئینے کو توڑ ڈالا ہے جس میں حقیقت کا چہرہ نظر آتا ہے۔ اسی لیے نبیوں کی پہلی صفت جو قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے وہ صادق ہو۔ چنانچہ بعض انبیاء کرام کے لیے یہ صفت کے طور پر بھی بولا گیا ہے۔ ذرا جو ہے سورہ مریم آیت نمبر 56 کی طرف چلیں تو اللہ رب العالمین نے اس میں ذکر کرتے ہوئے ادریس علیہ السلام کا ذکر اس طرح کیا کہ اس کتاب میں ادریس کا ذکر ہے، وہ بے شک بڑا سچا نبی تھا۔ یعنی ہر نبی کے سلسلے میں یہ تصدیق آتی ہے، کیونکہ جو نبی ہوتا ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ جو جھوٹ بول سکتا ہے تو پھر وہ کیسا جو ہے اللہ کے نبی ہونے کا دعوے دار ہو سکتا ہے۔ اسی لیے انبیاء کرام کی پہلی صفت جو بتائی گئی وہ صادق ہونے کی جو ہے وہ صفت ہے۔ سامعین اکرام، جھوٹ کو عربی میں کذب کے نام سے یاد کیا گیا ہے، اور فارسی میں اس کو دروغ گوئی کہتے ہیں، اور اردو میں اس کو جو ہے جھوٹ کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ جھوٹ دراصل کسی بات کی خبر دینا، جان بوجھ کر ہو یا غلطی پر ہو، جھوٹ کہلاتا ہے۔ سچ کو چھپانا، بات کو توڑ مروڑ کر پیش کرنا دراصل جھوٹ کے طریقے ہیں۔ یہ صرف زبان کا گناہ نہیں ہے بلکہ دل کی خرابی، نیت کی آلودگی اور ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جھوٹ یہ ہے کہ آدمی اپنے دونوں آنکھوں کو وہ چیز دکھائے جو ان دونوں آنکھوں نے نہیں دیکھی ہے۔ اسی بات کو سورہ نحل آیت نمبر 105 میں اللہ رب العالمین نے اس کو ایمان سے لنک کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا کہ جھوٹ وہی گھڑتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے، اور وہی جھوٹے ہیں۔ سامعین اکرام، یہاں اس شخص کے ساتھ اس آیت کریمہ کے ذریعے سے بتایا گیا کہ جن کے اندر ایمان کی کمی ہے، جو ایمان نہیں لاتے، انہی کے اندر یہ جھوٹ کی صفت پیدا ہو سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے جواب دیا ہاں۔ پھر سوال ہوا، کیا مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ پھر سوال کیا گیا، مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، اہل ایمان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اس طرح فرمایا کہ 4 خصلتوں کو بیان کر کے فرمایا کہ جو ان لوگوں میں پائی جائیں تو وہ منافق ہے۔ حدیث مبارکہ میں بتایا گیا کہ جن میں 4 خصلتیں ہوں وہ خالص منافق ہے، اور جس شخص میں ان خصلتوں میں کوئی ایک
खसलत भी पाई जाए तो इसमें निफाक की एक खसलत है। बहरहाल ये है कि वो इसे छोड़ दे। जब इसके पास अमानत रखी जाए, पहली चीज है कि वो खयानत करता है, और जब बात उससे की जाए तो वो झूठ बोलता है, जब वादा करे तो धोखा देता है, और जब लड़ाई झगड़ा करे तो गालम गलोच करता है। ये चांद सिफात आलिया बताते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स के अंदर मौजूद हो वो दरअसल मुनाफिक की निशानियों में से है। सामिन इकराम, इसी वजह से तो इसके सिलसिले में इतनी सख्त मतलब जो है बातें आई हैं, और मतलब जो है इसकी ममानियत करार दी गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम सच ही बोला करो, सच बोलना तुम पर लाजिम फर्ज है। बिलासुबह सच्चाई नेकी के राह पर ले चलती है, और नेकी जन्नत की राह पर ले जाती है। आदमी सच को अपना शुआर बनाता है और बराबर सच बोलता रहता है, यहाँ तक कि अल्लाह ताला की बारगाह में वो सिद्दीकीन में लिख दिया जाता है। और तुम झूठ से बहुत दूर रहो, झूठ नाफरमानी के राह पर चलता है, और इसमें शुबा नहीं कि नाफरमानी जहन्नम में ले जाती है। आदमी बराबर झूठ बोलता रहता है और झूठ ही की फिक्र में रहता है, यहाँ तक कि अल्लाह ताला के नजदीक वो झूठा लिख दिया जाता है। सामिन इकराम, इस हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको कौल और अमल, गुफ्तार और किरदार, हर एतबार से सच्चाई और सदाकत को अपना शुआर बनाने का हुक्म फरमा रहे हैं, और इसका शौक और रग़बत दिला रहे हैं। इसीलिए सच्चाई और सदाकत ही ईमान का वो जौहर है जो अमली जिंदगी में, जिंदगी के हर शोबे में दीन इस्लाम को हकीकत के आईने में पेश करती है। इस हदीस पाक का पढ़ने वाला हर शख्स इसके अल्फाज में इस बुलंदी को महसूस कर सकेगा जिस बुलंदी पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को ले जाना चाहते हैं, ताकि वो अल्लाह की जमीन में खलीफा होने की जिम्मेदारी निभाने का जिंदा और जावेद नमूना बन जाए। इसीलिए कि ईमान सिर्फ चंद अल्फाज का नाम नहीं है जिनको सिर्फ जबान से दोहराया जाता रहे, बल्कि ईमान एक हकीकत है, हर सुकून और हर हरकत में नजर आता है। ईमान एक बारे अमानत है जिसके साथ बड़ी जिम्मेदारी लगी हुई है। वो ऐसा जिहाद और जहद मुसलसिल है जो कौल और अमल और दिल और इरादे और नीयत सबकी सच्चाई और हकीकी मानी का मोहताज और मुतकाजी है। इसीलिए एक बुजुर्ग ने यूं फरमाया कि सदाकत और सच्चाई की इस अहमियत का अंदाजा इससे हुआ कि कुरान करीम ने सिद्क और सादिक, सच और सच्चाई को अपना शुआर बनाने का तस्करा जगह जगह किया है। जैसे मतलब जो है सूरह माइदा आयत नंबर 119 का मुतालिया करें तो वहां मतलब जो है इस तरह मतलब अल्लाह ताला फरमाता है, तर्जुमा है कि आज वो दिन है कि रास्तबाजों को इसकी सच्चाई ही फायदा देगी। दूसरी जगह सूरह तौबा आयत नंबर 119 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, तर्जुमा है, ऐ अहले ईमान खुदा से डरते रहो, रास्तबाजों के साथ रहो। और एक आयत में नबी का सच्चे मुसलमान मर्द और मुसलमान औरत का जिक्र भी करते हुए सच्चाई का, रास्तबाजी का मतलब जो है इस तरह इज़हार किया गया सूरह अहज़ाब आयत नंबर 35 में। और रास्तबाज मर्द और रास्तबाज औरतें इस तरह का जिक्र करके उनकी मतलब जो है सिफात को वाज़ेह किया गया। अल्लाह के यहाँ इन सच्चे मर्दों और औरतों का कितना ऊंचा मुकाम है, इसकी वजाहत हदीस पाक में इस तरह की गई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने खुलूस दिल के साथ अल्लाह ताला की राह में शहादत की दुआ की, अल्लाह ताला इनको शहीदों के मर्तबे पर पहुंचाएगा, ख्वाह इसका इंतकाल मैदान जिहाद के बजाय बिस्तर अलालत पर ही क्यों ना हो। एक और हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस बात में शक और तजब्जुब हो इसको छोड़ दो, और जिसमें शक को शुबा न हो इस पर अमल करो। इसमें शुबा नहीं कि सच्चाई ही इत्मीनान ने कल्ब है, और झूठ में शक को तरद्दुद है। हजरत आयशा रज़ी ताला अन्हु से मरवी है, वो फरमाती हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि मुसलमान किस बात से पहचाना जाता है। जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमान अपने वक़ार, तमकीनत और नर्म गुफ्तारी और सच बोलने से पहचाना जाता है। हजरत उमर रज़ी ताला अन्हु ने इसी बात को यूं इरशाद फरमाया, तुम सच ही बोलो, चाहे सच बोलने की पादाश में कत्ल ही कर दिए जाओ। बाज बुजुर्गों का कौल है कि हर चीज की एक जीनत होती है, गुफ्तगू की जीनत सच्चाई है। बाज उल्मा का कहना है कि सच्चाई दीन का सुतून है, अदब का रुकन है और हौसला मंदी की जड़ है। ये तीनों चीजें सिद्क के बगैर पूरी नहीं हो सकती। सामिन इकराम, सिद्क की जो इतनी अहमियत इसलिए है कि वो ऐसी रोशनी है जो खैर और भलाई की तमाम सूरतों को रोशन कर देती है और अल्लाह ताला की मोहब्बत के हुसूल की राहों को मुनव्वर कर देती है।
اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سچائی جنت کی راہ بتاتی ہے۔ ایسے ہی صدق کی اہمیت کا ایک راز یہ بھی ہے کہ وہ لوگوں کو نیکی کی راہ دکھانے اور اللہ تعالیٰ کی راہ پر چلنے اور ان کے حکموں کو زندگی کے میدان میں عملی جامہ پہنانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ سامعین کرام، معلوم ہوا کہ صدق ایک جو ہے مقدس امانت بھی ہے اور بہت بڑی ذمہ داری اور گراں باری بھی ہے۔ اسی لیے صادق کو کبھی کبھی اپنی سچائی اور راست گوئی اور حق پر ثابت قدمی کی وجہ سے بڑے امتحانات سے گزرنا پڑتا ہے۔ وہ اپنی امانت داری کی وجہ سے مشکلات اور دشواریوں میں پڑ جاتا ہے، کیونکہ ان جہاں فانی کے لیے یہی اللہ تعالیٰ کی سنت اور قانون ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ عنکبوت آیت نمبر 3 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ ہے، اور جو لوگ ان سے پہلے ہو چکے ہیں ہم نے ان کو بھی آزمایا تھا اور ان کو آزمائیں گے، سو خدا ان کو ضرور معلوم ہوگا کہ جو اپنے ایمان میں سچے ہیں اور ان کو بھی جو جھوٹے ہیں۔ سامعین اکرام، ابتلا و امتحانات کے بعد بندہ مومن کی تسکین اور اس کے شرف و فضیلت کے لیے یہ بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس طرح تعریف کرتا ہے، کہتا ہے کہ یہی لوگ ہیں جو ایمان میں سچے ہیں اور یہی ہیں جو خدا سے ڈرنے والے ہیں۔ یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 177 ہے۔ اور صادقین کے بالمقابلے میں اللہ تعالیٰ جھوٹوں اور کاذبوں کو دردناک عذاب کی وعید سناتا ہے۔ وہاں جو ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور ان کے جھوٹ بولنے کے سبب ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ دوسری آیت کی طرف چلیں، سورہ زمر آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جن لوگوں نے خدا پر جھوٹ بولا تم قیامت کے دن دیکھو گے کہ ان کے منہ کالے ہو رہے ہوں گے۔ سامعین اکرام، حدیث پاک میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو دونوں فرشتے جھوٹ کی گندگی اور بو کی وجہ سے 1 میل دور ہٹ جاتے ہیں، یعنی منکر اور نکیر۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جھوٹی بات کو ادھر ادھر نقل کرنے اور بیان کرنے والا بھی جھوٹوں میں شمار ہو جاتا ہے، جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ جھوٹ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے اور جھوٹ کا ستون بہتان ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ 2 باتیں جھوٹ سے خالی نہیں ہو سکتی، بہت زیادہ وعدہ کرنا اور زور و تاکید کے ساتھ عذر پیش کرنا۔ سامعین اکرام، اسی لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ سے ہم کو نہایت خوبصورت پیرائے میں ڈراتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تم جھوٹ سے بہت دور رہو۔ سامعین اکرام، اسی لیے اللہ رب العالمین علیم و خبیر ہے، دل کی نیت اور ارادہ اور حقیقت حال کو جانتا ہے، لہٰذا وہ لوگوں کا حساب ان کی نیتوں ہی کے اعتبار سے لے گا۔ جھوٹ کتنا ہی پوشیدہ اور چکنی چپڑی باتوں کی تہ میں ہو، اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں جا سکتا۔ جھوٹ کی یہ شناخت اور برائی اور اس کا قبض جھوٹے کو انسانی معاشرے میں نہایت پستی میں پہنچا دیتا ہے، ذلت اور رسوائی کے گڑھے میں گرا دیتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایمان کو کمزور بنا دیتا ہے، جھوٹے کے اندر بزدلی اور کم ہمتی پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ سماج اور معاشرے کی بلند کرداری سے آری اور دور ہو جاتا ہے۔ جب وہ جھوٹ ہی پر قائم رہتا ہے، وہ اس بری عادت سے باز نہیں آتا، تو بد کرداروں میں شمار کر دیا جاتا ہے۔ اس کا احساس و شعور کند ہو جاتا ہے، ان کے اندر عقل و باطل میں فرق و تمیز کی صلاحیت باقی نہیں رہتی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ سامعین اکرام، حدیث مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ان جو ہے تفصیلات کے ساتھ ہمارے سامنے واضح جو ہے چیزوں کے ساتھ اس کو جو ہے واضح کیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آیا، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ وہ کبیرہ گناہوں میں بھی سب سے بڑے ہیں؟ صحابہ کرام نے کہا کہ بتائیے اللہ کے رسول۔ فرمایا کہ نمبر 1 اللہ کے ساتھ شرک کرنا، نمبر 2 والدین کے ساتھ نافرمانی کرنا، نمبر 3 خبردار جھوٹ بولنا بھی کبیرہ گناہوں میں شمار گناہ جو ہے مانا جاتا ہے۔ سامعین کرام، صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ ایسا جھوٹ جس میں فساد اور بگاڑ اور ایک جو ہے آدمی پر اس جھوٹ سے ظلم ہو رہا ہو وہی ممنوع اور کبیرہ گناہ ہے، بلکہ لطف اندوزی اور ہنسنے ہنسانے کے لیے بھی جھوٹ بولنا ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص برباد ہو جو اسی بات کے بیان کرتا ہے تاکہ اس سے لوگ جو ہے ہنسیں، لہٰذا وہ جھوٹ تک بول جاتا ہے، ایسے شخص کے لیے بربادی ہو۔ ایک اور حدیث مبارکہ
मुबारका में मजाक के सिलसिले में बात करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं जमानत देता हूं कि जन्नत के बीच वाले घर की उस शख्स के लिए जो झूठ छोड़ दे, अगर चाहे वो मजाक ही में हो। एक और हदीस मुबारका में इरशाद फरमाया, कोई बंदा कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो झूठ न छोड़ दे, चाहे वो मजाक ही में क्यों ना हो। सामने इकराम, ये मतलब जो है इस्लाम में मजा यानी मजाक झूठ की आमजिश के साथ पेश किया जाने से अल्लाह ताला मना फरमाता है। इसीलिए इतना ही नहीं बल्कि मतलब जो है इस्लाम तकल्लुफात में भी झूठ बोलने से इंसानों को मना कर देता है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हदीस मुबारका में एक मतलब जो है वाकई की शक्ल में ये बात भी बताई। अस्मा बिनते खमीस मतलब जो है कहती हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दुल्हन को लेकर हुजूर के घर गई। जब हम आपके घर पहुंचे तो आप दूध का एक बड़ा प्याला निकाल कर लाए, फिर आपने बकदर ख्वाहिश पिया और इसके बाद अपनी बीवी को दिया। उन्होंने कहा कि मुझे ख्वाहिश नहीं है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम भूख और झूठ को जमा न करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस किया कि झूठ इन्हें भूख तो इन्हें लगी है लेकिन तकल्लुफ फरमा रही है, इसीलिए आपने झूठे तकल्लुफ से मना फरमाया है। और एक जगह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सुना कि बहुत से मतलब जो है ये बहुत ही बड़ी खयानत है कि तुम अपने भाई से कोई बात कहो और वो तुम्हारी बात सच समझे, हालांकि तुम ये बात इससे झूठी कह रहे थे। सामने इकराम, ये मतलब जो है वो चीजें हैं जो इससे मतलब जो है हमें जाहिर कर देती है कि तकल्लुफात में भी झूठ कहने से मना किया गया है। तकल्लुफ क्या है? तकल्लुफ दरअसल जरूरत से ज्यादा बनावट है, खुशामद है और ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करना है जो दिल में न हो। इसके सिलसिले में इसीलिए मना किया गया है। जब इंसान सिर्फ किसी को खुश करने, अपना मुकाम बनाने या खुद को बड़ा जाहिर करने के लिए हकीकत के खिलाफ बात करे तो ये तकल्लुफ में झूठ कहलाता है। जबान की बनावट और मसनवी तारीफें भी झूठ के दायरे में आती है, इसीलिए इसको भी मना किया गया है। एक और बात की तरफ चले, झूठ के ममनू होने की अलामतें ये भी है कि बच्चों को बहलाने के लिए भी झूठ का इस्तेमाल करने से हमें मना किया गया है, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक दिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर तशरीफ लाए, ये अब्दुल्ला बिन आमिर फरमाते हैं कि तशरीफ लाए और मेरी वालिदा ने मुझे बुलाया, यहाँ आ मैं तुझे एक चीज दूंगी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम इसे क्या देना चाहती हो? वालिदा ने कहा कि मैं इसे खजूर देना चाहती हूँ। आप ने उस वालिदा से फरमाया कि अगर तुम देने के लिए बुलाती और न देती तो तेरे नाम अमाल में झूठ लिख दिया जाता। सामने इकराम, मालूम है कि ये वालिदैन बिल उमूम मतलब जो है अपने बच्चों के साथ मतलब जो है ये मामला करते रहते हैं, कुछ खिलाने के लिए या मतलब जो है उन्हें मतलब किसी चीज से बाज रखने के लिए। ऐसा अमल मतलब जो है हर मतलब जो है घर माशरे के हर मतलब जो है कोने में देखा जाता है। जो कुछ देने के बहाने वो बुलाते हैं, हालांकि देने का इरादा नहीं होता, तो ये खुदा के साथ यहाँ झूठ शुमार होगा, नाम अमाल में झूठ की फहरिस्त में लिख दिया जाएगा। इसीलिए हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि झूठ बोलना किसी हाल में जायज नहीं, ना संजीदगी के साथ और ना ही मजाक के तौर पर, और ये भी जायज नहीं कि तुम में से कोई अपना बच्चे से किसी चीज के देने का वादा करे और फिर इसे पूरा न करे। सामने इकराम, इतना ही नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में यूं भी मतलब जो है बातें जो चिकनी चपड़ी ये मतलब जो है बातें लगा लगा कर लुत्फ महफिल का जो है मजा लेते हैं, उनके ताल्लुक से भी बयान करते हुए हदीस मुबारका में इरशाद फरमाया कि जो शख्स मुनाजरा बाजी न करे को जो फरमाया कि जो शख्स मुनाजरा बाजी न करे, अगर चाहे वो हक पर हो तो मैं उसके लिए जन्नत के गोशों में एक घर का जिम्मा लेते हूँ, और जो झूठ न बोले अगर चाहे हंसी के तौर पर ही क्यों ना हो तो मैं इसे जन्नत के वस्त में एक घर का जिम्मा लेता हूँ, और जो अपने अखलाक को बेहतर बनाए तो मैं इसके लिए जन्नत की सबसे ऊंचे हिस्से में घर का मतलब जो है जिम्मा लेता हूँ। सामने इकराम, बात को सही साबित करने के लिए झूठी खस्में खाने के सिलसिले में भी मतलब मना किया गया है कि झूठी खस्में खाना भी दरअसल झूठ ही कहलाता है। इस बात को सूरह मुजादिला आयत नंबर 14 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, तर्जुमा, और वो जानबूझकर झूठी खस्में खाते हैं। सूरह मुजादिला आयत नंबर
16 में फरमाया गया और उन्होंने अपनी कस्मों को ढाल बना लिया है, यानी कस्में खाकर सच को झूठ और झूठ को सच और इसको अपने बचाव के लिए ढाल बनाया करते हैं, इससे भी मना किया गया है। इसीलिए सूरह कलम आयत नंबर 10 में फरमाया गया, और बहुत सी कस्में खाने वाले जलील का कहा न मार। सामिन इकराम, कुरान झूठी कस्में खाने वाले की बुराई बयान की है। झूठ पर हर हाल में हराम है, लेकिन शरीयत ने बाज इंतहाई खास हालात में जाहिरी झूठ नहीं बल्कि हिकमत आमेज अंदाज गुफ्तगू की इजाजत जरूर दी है, वो भी सिर्फ मसलहत के लिए न कि जाती फायदे के लिए, यानी इजाजत इस्तिस्ना है, उसूल नहीं है। हदीस मुबारक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सच नेकी की तरफ ले जाता है और नेकी जन्नत की तरफ, और झूठ गुनाह की तरफ और गुनाह जहन्नम की तरफ ले जाता है। इसलिए आम हालात में झूठ कभी जायज नहीं है। आइम्मा कराम ने इजाजत दी है कि झूठ जायज नहीं मगर 3 जगह पर किया जा सकता है। नंबर 1 जंग में, नंबर 2 लोगों के दरमियान सलाह कराने में, नंबर 3 मियाँ बीवी के दरमियान ताल्लुक बेहतर बनाने में। जहां मतलब जो है जंग का तस्करा है, जंग में दुश्मन को धोखा देने के लिए असल पोजीशन, ताकत या मनसूबा छुपाना, मसलन दुश्मन से कहना कि हम कल हमला करेंगे जबकि असल में आज ही हमला करने का इरादा हो। इस सिलसिले में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जंग तो चाल और तदबीर का नाम है, इसका मकसद सिर्फ दुश्मन से हिफाजत, किसी बेगुनाह को मतलब जो है नुकसान न पहुंचने की मतलब जो है कोशिश, और मतलब जो है जाती फायदा इसमें बिल्कुल नहीं है और न होना चाहिए। नंबर 2 मतलब जो है जहां उस हदी अम्मा की इजाजत में, वहां मतलब सलाह कराने के लिए झूठ बोलने का जो इजाजत दी गई, सलाह मतलब जो है कराने के लिए 2 अफराद या खानदान में लड़ाई हो रही हो और सलाह मुमकिन न हो रही हो, तो सालिस मतलब जो है सलाह कराने वाला है वो कह सकता है कि तो वो तुम्हारी तारीफ कर रहे थे, हालांकि असल में ऐसा न हो मगर इससे दिल नरम हो जाने के इम्कानात हो तो वो कह सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो झूठा नहीं जो लोगों के दरमियान सलाह कराए और भलाई की बात पहुंचाए, इसका मकसद सिर्फ सलाह हो, किसी का हक न मारा जाए और फसाद खत्म करना मकसूद हो। तीसरा मतलब जो है मियाँ बीवी में सलाह कराने के लिए जो इजाजत दी गई है, शोहर या बीवी इस बात ऐसी बात कहना, शोहर या बीवी आपस में बात मतलब जो है कहना कि वो हकीकत में न हो मगर मोहब्बत बढ़ाने के लिए हो, झगड़े के इख्तिताम के लिए हो। मसलन शोहर कहे कि तुम दुनिया की सबसे अच्छी औरत हो, यह हकीकतन मुबालगा हो सकता है मगर मकसद दिलजोई और मोहब्बत है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मियाँ बीवी के दरमियान कही जाने वाली बात में झूठ की इजाजत है, मकसद धोखा न हो, किसी का हक किसी के हक के तलफी न हो और फरेब या खयानत मतलब जो है शामिल इसमें न हो, तो इसकी इजाजत दी गई है। सामिन इकराम, उलमा कराम फरमाते हैं कि इन तीनों सूरतों में जो खुला और साफ झूठ नहीं बल्कि तौरिया यानी हिकमत आमेज बात अफजल है, इसलिए वो इख्तियार करने की ताकीद की गई है। इस्लाम ने झूठ को नहीं बल्कि फसाद को रोकने की तरजीह देता है, इसलिए कि झूठ की इजाजत असल में झूठ की मोहब्बत नहीं बल्कि बुराई के खात्मे की इजाजत है। सामिन इकराम, झूठ एक ऐसी बीमारी है जो माशरे को बिगाड़ पैदा कर देती है, लोगों के दरमियान लड़ाई झगड़े का सबब बनती है, 2 आदमियों के दरमियान अदावत दुश्मनी को परवान चढ़ाती है। अगर हम एक साले माशरा तामीर करना चाहते हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि अब इस हुक्म के मुताबिक झूठ से बचना चाहिए, दूसरों को इस फासिद मतलब जो है चीजों से बाज रखने की कोशिशें करना चाहिए और अपने घर को इस झूठ से पाक और साफ करना चाहिए, अपने दिलों को इस झूठ से मतलब जो है पाक करना चाहिए। झूठ इंसानों को वक्ती तौर पर मुश्किल से निकाल तो जरूर सकता है मगर हमें खुदा से बहुत दूर कर देगा, माशरे में इज्जत वकार एतमाद का खात्मा कर देगा। कुरानी अहकामात और इसकी सख्ती दरअसल इस्लाह माशरा और सुकून और अमन और मकसद के क़याम में मदद के लिए है। हमें अपने आका की तरफ रुजू करना होगा और कुरान के अहकामात को अपनी जिंदगी में जारी करना होगा। हमें अल्लाह का महबूब और जन्नत का हुसूल आसान मतलब जो है कर सकता है जब हम इन अहकामात की मतलब पैरवी करेंगे और इसे अपने घर से, अपने दिलों से और अपने माशरे से इसको मतलब जो है खत्म करने की कोशिशें करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए, समझ अता फरमाए, जो हुक्म इलाही को सुना है इसको अमली जामा पहनाने की हमें तौफीक दे। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।